Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. We have already completed total 5 chapters including biomolecules, short revision, and in today's class we will be continuing chapter number 7, which is a structural organization in animals. So let's get started. Now, before start, in unicellular organisms, there are various processes like digestion, respiration, excretion, and many more. They all are done in single cell, right? But as we talk about multicellular organisms, in multicellular organisms, there are specific organs for performing specific functions like digestive system, respiratory system, excretory system, reproductive system. So they are divided. Now the question arises कि ये systems बने कैसे, ये systems किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या ये systems एक single cell के हैं? No, the answer is no. क्या ये systems कुछ cells से मिलके बने हुए हैं? Then yes, when the cells come together, right? When the cells come together and they when more than two or more than cells, two or more cells join together, they form a tissue. They form a tissue, and when these tissues join together, they form organs. Now, this is very surprising that your body, the human body, the complex body is made of only and only 4 types of tissue. Isn't it surprising, right? हमारी जो बॉडी है, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी होने के बावजूद जब हमें ये मालूम चलता है कि हमारी बॉडी तो सिर्फ 4 टिश्यूज से बनी हुई है, 4 टाइप के टिश्यूज से बनी हुई है, तो उन्हीं टिश्यूज की हम बात करने वाले हैं. जो चैप्टर नंबर 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें टिश्यूज के अलावा अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग 3 चीज़ें और दी गई हैं. बट according to the new reduced syllabus, cockroach, earthworm and frog has been deleted from your syllabus. Therefore, हम ये अभी कवर नहीं करेंगे, but after completing the full syllabus एक नई सीरीज आएगी जिसमें हम reduced syllabus को भी कवर करने वाले हैं. So all the NEET aspirants, do not worry about your reduced syllabus topics. I am going to cover them all also. Now, the structure of the cell varies according to their function, right? So these tissues are broadly divided into 4 categories: epithelial, connective, neural and muscular tissue. So there are basically 4 types of tissues that we need to study. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं epithelial tissue के बारे में. तो epithelial tissue क्या है? Let's see the definition. When we commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, this tissue has a free surface. Epithelial tissue एक ऐसा tissue है जिसमें free surface होता है which faces either a body fluid or outside the environment. Thus provide a covering or a lining for some part of the body. Epithelial tissue एक ऐसे type का tissue है जिसका surface free होता है, फ्री सरफेस होता है. इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके स्किन के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू है. ओके, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स. इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, उस स्पेस में मैट्रिक्स भरा हुआ होता है. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक टाइप का लिक्विड सब्सटेंस होता है. Clear? Now there are basically 2 types of epithelial tissue: simple epithelial and compound epithelial. Now we are going to discuss these 2 types of tissues in detail. Okay? So simple epithelial is composed in a single layer of cell and functions as a lining for body cavity, duct and tubes. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बच्चों, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो डक्ट में, डक्ट की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. डक्ट क्या है?
डक्ट मतलब फॉर एग्जांपल आपका फूड पाइप है, तो फूड पाइप का जो लाइनिंग है, जो इंटरनल लाइनिंग है, वहाँ पे आपका एपिथेलियम टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डक्ट में, लाइनिंग में, ट्यूब्स में, यहाँ पे आपको सिंपल एपिथेलियम मिलता है, सिंगल लेयर्ड होता है। सिंपल एपिथेलियल इज सिंगल लेयर्ड। अब देखो, the compound epithelial consists of 2 or more cells and has protective function as it does in our skin। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका स्किन है और स्किन के नीचे जो प्रेजेंट है, जो टिश्यू प्रेजेंट है, वो आपका एपिथेलियल है। नाउ दिस इज योर कंपाउंड एपिथेलियल। ये आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट है और क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए दिस इज योर कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम डक्ट में होगा, कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्ट योर स्किन। ठीक है, ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हमने देख लिए, इनके डायग्राम भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। Now, on the basis of a structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into 3 types of category। अब क्या है, जो सिंपल एपिथेलियम है ना, उसको भी हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। देखते हैं हम वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। कोलुमिनर, क्यूबॉइडल एंड स्क्वैमस। ठीक है, कोलुमिनल, क्यूबॉइडल एंड स्क्वैमस, ये 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तीनों के डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। कोलुमिनल, क्यूबॉइडल एंड स्क्वैमस, ये 3 टाइप के आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम जरा देख लेते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम की हम बात करें, स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल थिन लेयर का बना होता है, वो भी फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको स्क्वैमस एपिथेलियम दिख रहा होगा। आप देख सकते हो कि ये सिंगल थिन लेयर का है, वो भी फ्लैटेंड सेल है और इरेगुलर बाउंड्रीज है। अब क्वेश्चन आते हैं कि मैम ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। जो ब्लड वेसल्स का वॉल होता है ये वहाँ पे पाए जाते हैं, और जो लंग्स का एयर सैक्स होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्क्वैमस एपिथेलियम किस टाइप का है। स्क्वैमस एपिथेलियम ये फ्लैट सेल्स का बना हुआ है, सिंगल थिन लेयर होता है, ये थिन फॉर्म में होता है, और फ्लैटेंड सेल है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। कहाँ पे पाया जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, एंड दिस इज फाउंड इन द एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एंड इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज को क्रिएट करता है। सो दिस वाज योर स्क्वैमस एपिथेलियम। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cells। Cuboidal epithelium नाम से ही समझ में आ रहा, क्यूब, क्यूबॉइडल। ठीक है, तो क्यूब लाइक सेल्स इसमें प्रेजेंट है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। अब देखो ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड में, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है इन द किडनी। एंड इट्स मेन फंक्शन ऑफ सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या करता है, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने क्या देखा, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं इसमें। ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। और कहाँ पे, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, जो नेफ्रॉन्स होते हैं बच्चों किडनी में, वहाँ पे पाया जाता है ये। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपकी बॉडी के अंदर किडनी में क्या होता है, बेसिकली किडनी में आपके एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम तीसरे की बात करने वाले हैं, द कोलुमिनर एपिथेलियम। कोलुमिनर एपिथेलियम is composed of a single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli and they are found in the lining of the stomach and intestine and help in the secretion and absorption.
कोलुमिनर एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है। और कैसे होता है ये, इसका डायग्राम देखो आप। टॉल एंड स्लेंडर सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बेस पे प्रेजेंट है। और देखो इनमें क्या होता है, फ्री सरफेसेस जो होते हैं ना उनमें माइक्रोविलाई होते हैं। नाउ माइक्रोविलाई क्या है, विलाई समझते हैं पहले तो हम। विलाई क्या होते हैं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा मतलब कंजेस्टेड फॉर्म में जब कोई भी सेल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। माइक्रोविलाई का यहाँ पे आपको विलाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लियरली, विलाई का स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका विलाई। और जब ये छोटे होते हैं, है ना, थोड़ा सा उनका साइज तो है जो छोटा हो गया, तो उनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये बहुत ही कंजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं टू रिड्यूस द स्पेस ना भरे, इसीलिए ये विलाई के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे इनमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, फ्री सरफेस। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मिलते हैं लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। एंड कोलुमिनर एपिथेलियम भी आपके सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे तीन बहुत क्लियर हो गए, तीनों टाइप के आपके सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हमने तीन टाइप के कौन कौन से देखे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर। ये रहा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर, ये तीन टाइप के आपके यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम हमने कवर कर लिए। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कोलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया। देखो अब क्या होगा, अगर क्यूबॉइडल और कोलुमिनर सेल्स में अगर सीलिया होगा, ठीक है, ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर इनमें सीलिया प्रेजेंट है तो हम इन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। फिर से समझते हैं हम इसको, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ देखो सीलिएटेड एपिथेलियम में आपको सीलिया प्रेजेंट दिख रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या आपका सीलिया है। यही सीलिया क्या करता है, यही सीलिया फूड को इनटेक करना या म्यूकस का मूवमेंट करना, पार्टिकल्स का मूवमेंट करना इन द एपिथेलियम टिश्यू, उसमें हेल्प करता है। तो अगर किसी भी क्यूबॉइडल या फिर कोलुमिनर टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट होता है तो हम उसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोल देते हैं। ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें हो सकते हैं या फिर जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगली टिश्यू की बात कर लेते हैं। Some of the columnar और cuboidal cells get specified। ये कुछ क्या होते हैं, कुछ columnar और cuboidal cells होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सेक्रीशन के लिए and are called glandular epithelium। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम glandular epithelium बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, ये एक क्यूबॉइडल और या फिर कोलुमिनर एपिथेलियम ही था, बट ये क्या हो गया, अपने आप में स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है। जैसे मैंने किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं उस चीज़ में क्या हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई हूँ, प्रॉपरली मुझे वो चीज़ आती है। तो ऐसे ही अगर किसी ने क्यूबॉइडल या कोलुमिनर टिश्यू जो है वो क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया, माहिर हो गया किसी काम में, तो वो क्या होगा, वो जैसे कि वो फॉर सेक्रीशन के लिए माहिर हो गया, तो वो कहलाएगा क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ डायग्राम देखो, ये ऐसे इस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें क्या है, ये एक अंदर टाइप में इसमें ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से वो सेक्रीशन इजीली कर पाएगा। सो दिस इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Now they are mainly of two types, unicellular consisting of isolated glandular cells and multicellular consisting of cluster of cells। अब यूनिसेलुलर जो होगा उसमें क्या होगा, ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, भाई अकेले घूम रहे हैं। आइसोलेटेड वर्ड तो अभी हमें ऐसा है कि बिल्कुल हर किसी को समझ में आता है, आइसोलेशन, आइसोलेट, ठीक है। तो आइसोलेटेड है ये। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं
वो उनमें क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेलुलर एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम इनका थोड़ा सा और डिवीजन करते हैं, ठीक है। इनके प्रेजेंस पे ये बाहर प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है, हम इन्हें दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये दो टाइप के ग्लैंड्स हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट म्यूकस, सलाइवा, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. Now these cells are released through the duct or tubes. हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करी, किसकी बात करी, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का क्या मतलब है, एक्सो बाहर की तरफ है, तो ये क्या सेक्रेट कर रहा है, जैसे कि सलाइवा, ईयरवैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, तो जो अभी हमने देखी, तो ये सारे के सारे सेक्रेशंस बाहर साइड हो रहे हैं, तो ये एक्सोक्राइन, ये बाहर प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन कॉन्ट्रास्ट, नाउ इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडो मीन्स इनसाइड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आता है, अब हम वो भी देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी डक्ट, इनमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती है, इनमें डायरेक्टली हार्मोन जो रिलीज हुआ वो डायरेक्टली बेद हो जाएगा ग्लैंड में। समझ में आया, समझो। देखो एक्सोक्राइन में वो प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है, छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू पास हो रहा था, बट एंडोक्राइन में कोई इनमें डक्ट नहीं है, इनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली रिलीज होता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो होते हैं डक्ट ग्लैंड एंड एंडोक्राइन आर डक्टलेस ग्लैंड। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हमने सिंपल एपिथेलियम कवर कर लिया अपना, अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम को भी हम डिटेल में देख लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, इसे मल्टीलेयर्ड बोलते हैं, वन लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मल्टीलेयर्ड होते हैं, इसीलिए इनका बहुत कम रोल होता है सेक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिज्म स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of salivary gland and pancreatic duct. फिर से एक बार देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के ड्राई सरफेस पे, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम समझते हैं कि बक्कल कैविटी क्या है। दिस इज योर बक्कल कैविटी, ये जो माउथ के अंदर कैविटी प्रेजेंट है इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि आपकी जो बक्कल कैविटी है, माउथ के अंदर की जो कैविटी है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेल्स होती हैं ना एपिथेलियम टिश्यू में, जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली होती हैं और इनमें जो इंटरसेलुलर गैप प्रेजेंट होता है, इस गैप में ना कुछ जंक्शंस होते हैं। ये जंक्शंस अलग अलग काम करते हैं। सो बेसिकली ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। एक होता है गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड एडहरिंग जंक्शन। 3 टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। टाइट जंक्शन की बात करते हैं। टाइट जंक्शन क्या करेगा, नाम से समझ में आ रहा है, टाइट है मतलब एकदम ये टाइट होगा, लीकेज, किसी भी चीज़ का लीकेज ना हो पाए इससे बचाता है, ठीक है। 2 सेल्स के बीच में कोई लीकेज ना हो तो टाइट जंक्शन वहाँ पे काम करता है। फिर दूसरे पे आ जाओ, दूसरा है आपका कौन सा, एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा है, एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है। क्या होता है, जब हम 2 ब्रिक्स लेते हैं, घर बनता है तो क्या करते हैं, हम ब्रिक्स रखते हैं, ब्रिक्स रखते रहते और उसके बाद क्या करते हैं, उनमें बीच में सीमेंटिंग करते हैं ना, सीमेंट भरी जाती है, उससे जोड़ा जाता है, तो ये सीमेंटिंग होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, उनके बीच में अब सीमेंटिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, हमें ज्वाइन करना है। तो जो एडहेरिंग जंक्शन होते हैं ना वो सीमेंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। टाइट, एडहेरिंग। अब आओ गैप जंक्शन पे। तो गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन भाई बातचीत करता है ना। 2 घर हैं, 2 पड़ोसी हैं बढ़िया,
तो यहाँ पे एक पड़ोसन दीवार है बीच में, एक पड़ोसन इधर खड़ी है, एक पड़ोसन इधर खड़ी है। तो बढ़िया दोनों क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं छत पे खड़े होके। ठीक है, छत पे खड़े होके दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसे। और दीदी सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ दीदी सब बढ़िया, घंटों से लगे बातें कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइंस। वहीं से छत पे से ही उन्होंने बढ़िया दिवाली की सोन पापड़ी उन्हें दे दी, और उन्होंने वहाँ से अपने घर में बढ़िया से ये कुछ बनाया था तो वो उठा के उन्होंने दे दिया। तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स। उन्होंने सोन पापड़ी दी, उन्होंने कुछ और अच्छा बना के दे दिया। ठीक है, तो ये गैप जंक्शन है। वो जो दीवार है ना, वो गैप जंक्शन की तरह काम कर रही है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो गैप जंक्शन कम्युनिकेट्स, तो ये कम्युनिकेशन करते हैं, स्मॉल आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करना, बिग मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करना, आइंस का एक्सचेंज करना, ये सारा काम गैप जंक्शन करता है। तो यहाँ पे समझ आ गया कि एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना, उनमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो 3 टाइप के जंक्शन होते हैं, गैप, एडहेरिंग एंड टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट जंक्शन लीकेज से बताता है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग करता है। और गैप जंक्शन क्या करता है, सोन पापड़ी और बाकी के पकवान एक्सचेंज करता है। मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स और जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो गैप जंक्शन करता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया एपिथेलियम टिश्यू। अब हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो दूसरा टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। लाइक करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतना टाइम हो गया भाई, सब्सक्राइबर्स का रेट इतना गिर गया है, थोड़ा बढ़ाओ, मुझे भी अंदर से खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, इतने सारे बच्चों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सब्सक्राइब तो करो, शेयर तो करो भाई, है ना, तब तो मज़ा आएगा फिर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड डे।